बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। All students, learners all over the world, Assalamu alaikum. Now let's move to the topics. Today I have got two topics to discuss with you. Number one is simple past or past indefinite. The second topic is past perfect. Let's discuss the first topic, that is simple past or past indefinite. What does it mean? It means the simple past is used. हम simple past का इस्तेमाल करते हैं to indicate, ये बताने के लिए an action completed in the past कि माजी में एक काम मुकम्मल हो चुका था. Let's discuss its formula number one. What does the formula number one says? He, she, it, they, you, we, or any subject, singular or plural. And I told you many times in my videos, the subject. Subject means doer of an action. काम का करने वाला. जैसे इसको मैं सब्जेक्ट हूँ, आप पे काम कर रहा हूँ, आप ऑब्जेक्ट हो गए. अब इसमें चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, we have to use second form of the verb plus object. लेकिन second form किसमें आएगी? Only affirmative sentence और positive sentence. यानी कि ये सादा जुमले में आएगी second form, right? Now, if you want to change into negative, जब हम इसका इंकारिया बनाना चाहेंगे, we will use did not, and the same second form will change into the first form. First form plus object. And if you want to change into interrogative, सवालिया जुमले में जब तब्दील करेंगे, did शुरू में आएगा, फिर ये second form will change into the first one plus object. दोबारा से सुने. In past indefinite tense, in positive form, we have to use the second form. When you want to change into negative, we use did not, and the second form is changed into the first one. Similarly, if we want to change interrogative, we use did in the beginning, and the second form will change or convert into the first one. Let's see the first example. उसने एक किताब लिखी. अब write, wrote, written. As you know, a verb has three forms: first form, second form, and third form. We have to use the second form. He wrote a book. उसने एक किताब लिखी. नेगेटिव करेंगे, फार्मूले के मुताबिक देंगे. He did not, और ये second form फर्स्ट में कन्वर्ट हो गई. He did not write a book. उसने किताब नहीं लिखी. अब जब सवालिये में तब्दील करेंगे, अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिड शुरू में आ गया, and the second form is changed to the first one. Did he write a book? क्या उसने किताब लिखी? सवालिये में क्या आ गया? नॉर्मली बातें की, लेकिन I always teach my students. Did he not write a book? सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा और सेकंड फॉर्म फर्स्ट में तब्दील हो जाएगी. क्या उसने किताब नहीं लिखी? अब इसकी देखें, उर्दू में था, थी, थे नहीं आता है. माइंड में था, थी, थे नहीं आता है. और उर्दू की पहचान क्या है? देखा, पढ़ाया, लिखा, सोचा, आया, गया, बुलाया. ये इसकी उर्दू में पहचान है. मैं मार्केट गया, तुमने मुझे पढ़ाया, हम एक साथ बाजार गए, हमने एक हादसा देखा. Like this, I received 3 messages from Pashto speaking students. They asked me, sir, we do not understand Urdu very well. Please, if you can teach us the formula in Pashto, we would like to be grateful to you.
So for them, all students are equal. Either Pashto speaking, Punjabi speaking, Saraiki speaking, Urdu speaking, and so on. I would like to teach the same thing in Pashto. All Pashto students listen to me very carefully. In past indefinite, positive sentence, second form razi. Past indefinite de, positive sentence, second form razi. Negative de, did not razi, first form razi. Sawaliya de, did razi, first form razi. Affirmative de, second form razi. Negative de, did not razi. Sawaliya de, did razi, first form razi. So what I was telling you, in past indefinite tense, second form is used only in positive form. In negative, we use did not, and the second form is changed to the first form. Similarly, in interrogative form, we use did in the beginning, and the second form is changed to the first form. देखिए बेसिकली ये प्रेजेंट डेफिनेट का पास्ट इंडेफिनिट बनता है। वो मार्केट जाता है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, प्रेजेंट डेफिनेट में ताती दे आता है। अब इसी को देखे मैं पास्ट इंडेफिनिट में करता हूँ, वो मार्केट गया, तुम मुझे बुलाते हो, ये आ रहा है प्रेजेंट डेफिनेट, तुमने मुझे बुलाया, पास्ट इंडेफिनिट, वो हंसता है, वो हंसता, that is the Urdu. Now I would like to take you to the second topic, that is past perfect tense. Right? What does it say? The past perfect is used to describe an action completed before a certain moment in the past. Right? देखिए मैं आपको आसान रिजल्ट बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है? एक एक्शन जो दूसरे एक्शन से पहले हुआ। If two actions happen in the past simultaneously, what happens? The first action is placed in the past perfect tense, and the second one is placed in the past indefinite. Right? जो पहले काम होगा वो past perfect में होगा, जो दूसरा काम होगा वो past indefinite में होगा। मिसाल मैं आपको देता हूँ before I teach you this tense. जब आप आए तो मैं खाना खा चुका था, तो कौन सा काम पहले हुआ? खाना मैंने पहले खाया, बाद में आप आए। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो कौन सा काम पहले हुआ? पहले मरीज मरा, बाद में डॉक्टर आया। तो in that particular situation, past perfect is used. Right? Now move towards the topic. इसमें भी तरीक़ेकार क्या है? चाहे सब्जेक्ट आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, वी हो, दे, यू और एनी सब्जेक्ट सिंगुलर, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, had plus third form plus object. Right? अब पहले मैं फार्मूला बताने से पहले आप इसकी उर्दू देखिए, इसकी उर्दू में पहचान क्या है? पहचान क्या होती है? कर लिया था या कर चुका था, लिख लिया था या लिख चुका था। इसकी उर्दू में लाजमी था, थी, थे आता है, इसके बगैर ये बन ही नहीं सकता। अच्छा, नॉर्मली क्या कहते हैं, इसके अंदर आता है कर चुका था, पढ़ चुका था, लिख चुका था, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी। सेंटेंस नंबर 1, I have purchased this book. Purchase means bought. मैं ये किताब खरीद चुका था, लेकिन इसका दूसरा ट्रांसलेशन भी तो हो सकता है, या मैंने ये किताब खरीद ली थी। भाई मैं खाना खा चुका था या मैंने खाना खा लिया था, मीनिंग तो सेम है। तो इसकी दोनों को ध्यान में रखिए, क्योंकि ट्रांसलेशन भी आता है क्लास 9 में, 10th में, फर्स्ट ईयर। For all students studying in 9, 10, first year, for them that is very very important to understand Urdu as well. जब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो had not आता है और वर्ब तब्दील नहीं होता, थर्ड फॉर्म ही आती है हमेशा। जब सवालिया करते हैं तो had आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सवाल कार्य में यही होता है। देखिए, I had purchased this book, मैं ये किताब खरीद चुका था, या मैंने किताब खरीद ली थी। I had not purchased this book, मैं ये किताब नहीं खरीद चुका था, या मैंने ये किताब नहीं खरीदी थी। Had I purchased this book, क्या मैं ये किताब खरीद चुका था, या क्या मैंने ये किताब खरीद ली थी।
For Pashto students, past perfect they had Razi, third form Razi. Negative they had not Razi, third form Razi. Sawaliya they had Razi, third form Razi. अब now I am taking you to another important thing. You should know this. देखिए वर्ब होते हैं दो तरह के, ये भी समझा दूँ आपको, क्योंकि आपको ट्रांसलेशन में परेशानी होगी. If you can see here, एक होता है रेगुलर वर्ब. क्या होता है बेटा? रेगुलर वर्ब. रेगुलर के माने होते हैं कायदे वाला, जिसका कोई कायदा हो. अच्छा, उसमें क्या होता है रेगुलर वर्ब के अंदर? हम जब उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम डी का या ईडी का इजाफा करते हैं, उसे रेगुलर बोलते हैं. जैसे डिसाइड, हमने डी लगाया, डिसाइड. डेवलप, डेवलप. There can be thousands of examples. In short, I am teaching you. ऐसा वर्ब जिसकी सेकंड में डी लगाकर, ईडी लगाकर उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, उसको बोलते हैं बेटा रेगुलर वर्ब या कायदे वाला वर्ब. अब सेकंड देखें, इर्रेगुलर वर्ब. इर्रेगुलर वर्ब क्या होता है? इसको उर्दू में बोलेंगे बेकायदा, जिसका कोई कायदा ना हो. भाई ऐसे कैसे? देखिए मिसाल, कट कट कट, डू डिड डन, बीट बीट बीटन. या तो तीनों फॉर्म में सेम होंगी, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, या फर्स्ट सेकंड थर्ड मुख्तलिफ होगी. जैसे मैंने लिखा डू डिड डन, बीट बीट बीटन. राइट? ऐसा वर्ब जिसकी तीनों सेम हो या दो सेम हो और तीसरी डिफरेंट हो, लाइक दिस वन बीट बीट बीटन, या तीनों एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है. ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि जब आपका ट्रांसलेशन आता है, मिसाल के तौर पे अगर इसका ट्रांसलेशन जुमले का आ जाए, इधर देखें, वो तेज दौड़. अब इस जुमले में देखें, दौड़ने को क्या कहते हैं? रन. सेकंड फॉर्म होती है रन, थर्ड फॉर्म बेटा होती है रन. अब फर्स्ट और थर्ड सेम है, आप भी इस्तेमाल करते हैं. So you have to memorize all the forms of the verb, either regular or irregular. उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा आपको टेंसेस का गेम. अब आपने क्या करा? वो तेज दौड़ा, ही, आपने सेकंड फॉर्म लगा दी. पास्ट एंड डेफिनेट समझा रहा हूं मैं आपको. ही रैन फास्ट. अब इसी को अगर मैं पास्ट परफेक्ट बनाऊं, वो तेज दौड़ चुका था. इसमें क्या हुआ? He had. अब ये थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, run fast. See the difference between past indefinite and past perfect. अब इधर आइए, मैंने आपको मशवरा दिया. अब मशवरे को क्या कहते हैं? एडवाइस. एक चीज और यहां बताता चलो, ये जो एडवाइस होता है जिसमें एस आता है, ये वर्ब होता है, और जिसमें सी आता है ये नाउन होता है. इसके तलफ्फुज़ में ही फर्क होता है. जब ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो इसका तलफ्फुज़ होता है एडवाइज, जेड का साउंड प्रोड्यूस होता है. जब ये नाउन के तौर पे होता है तो सुने साउंड, एडवाइज सी का साउंड निकलता है. That is the difference between them. This one is the verb and this one is the noun. मैंने आपको मशवरा दिया, तो क्या होगा? सेकंड फॉर्म, I advised you. अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सिंपल है, ये सेकंड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. I didn't advise you. सवाल क्या करेंगे? तो did I advise you? अब इसी जुमले को इधर देखें ब्लैक बोर्ड पे, मैं आपको मशवरा दे चुका था, ये पास्ट परफेक्ट हो गया. अब इसको बनाते हैं, I had advised you. Right? I am sure you must have understood both the topics, that is simple past or past indefinite or past perfect. Now I am taking you towards the difference between past perfect tense and past indefinite tenses. Means कि where to use past perfect tense and past indefinite tense when both of them come together in one sentence.
right? Because in class 9, let me make it clear, class 9 में भी, मैट्रिक में भी, फर्स्ट ईयर में भी इस तरह की ट्रांसलेशन के लिए जुमले आते हैं, right? What happens? Let's see. What does it says? The difference. If two actions happen in the past, वो ये कह रहा है अगर दो काम माजी में एक साथ हो, it is necessary to show which action happened earlier than the other. इसके मायने ये हुए, ये बताना बहुत जरूरी है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ दूसरे एक्शन से। फिर ये कहते हैं the action which took place earlier than the second action. The action which took place earlier than the second action, इसकी उर्दू हो गई वो एक्शन जो पहले वाक़या हुआ था दूसरे एक्शन से पहले, must be placed in the past perfect tense. उसको हमने past perfect tense में शो करना है। And the other, that is ये लिखा हुआ second action in the past indefinite और simple past, उसको past indefinite में या simple past में both have the same meaning। यानी कि अगर दो एक्शन माजी में हो, हमने ये आइडेंटिफाई करना है उर्दू पढ़कर कि कौन सा एक्शन पहले हुआ। अच्छा बेटा, जो एक्शन पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में कर दे और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट में। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। जब आप आए, एक बात हो गई, मैं खाना खा चुका था। अब इस उर्दू को और से देखना, इसमें कौन सा काम पहले हुआ? कह रहा है जब आप आए तो मैं खाना खा चुका था। पहले मैंने खाना खाया फिर आप आए, तो कौन सा काम पहले हुआ? मैं खाना खा चुका था, ये एक्शन हो गया 1, एक्शन 1। जब आप आए ये हो गया एक्शन 2। According to what I have written down above the sentence, the first action should be placed in the past perfect. Let's do it. I had eaten food. जब आप आए, when you came, कब का past tense came? I had eaten food when you came. अब देखिए जो एक्शन पहले हुआ था उसको मैंने पास्ट परफेक्ट में कर दिया, दूसरा पास्ट है, as simple as that। ये ऐसा you can write down like this, when you came I had eaten food, makes no difference at all। Let's see the second example। बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। गौर से सुने, बारिश शुरू होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे, तो हमने कौन सा काम पहले हुआ? हम घर पहुंच चुके थे। ये बाद में हुआ, पहले हम घर पहुंचे, बाद में बारिश शुरू हुई। यही तो कह रहा है वो, बारिश शुरू होने से पहले। तो ये पास्ट परफेक्ट में कर दें तो क्या बनेगा? इसको मैं रिवर्स कर देता हूं, बिफोर, पास्ट इंडेफिनिट पहले कर देता हूं, बिफोर द रेन स्टार्टेड, बारिश शुरू होने से पहले, we had reached home. See, before the rain started, we had reached home. See the last sentence. डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि मरीज पहले मिला, डॉक्टर बाद में आया, तो जो काम पहले होगा must be placed in the past perfect tense. Let's do it. Before the doctor came, before the doctor came, डॉक्टर के आने से पहले the patient had died, or you can also write down passed away. Before the doctor came, the patient had died or passed away. Right? See the difference between the use of past perfect tense
and past indefinite tense. Where to use past perfect tense and where to use past indefinite. For all the students, I have given you 5 sentences so that you may not search anywhere. Do practice it. देखें, practice is very very essential. मेरे पढ़ाने से मसला नहीं होगा unless and until you practice. ये तो आपको करना पड़ेगा, right? Translate into English. Number 1 says, नतीजा निकलने से पहले वो बुल छोड़ चुका था, यानी कि पहले उसने बुल छोड़ा, बाद में नतीजा आउट हुआ. Second says, जब मैं हवाई अड्डे पर पहुंचा तो जहाज प्रवास कर चुका था. मीनिंग दिया हुआ जहाज पहले प्रवास कर चुका था, मैं बाद में पहुंचा. तो जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में, दूसरा है पास्ट परफेक्ट. नंबर 3 से जब पुलिस पहुंची तो मजमा मुंतशिर हो चुका था. अच्छा, मुंतशिर को क्या बोलते हैं? लेट मी राइट डाउन हियर. DISPERSE, डिस्पर्स. इंग्लिश में इसको बोलेंगे बेटा गो इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस. उर्दू में बोलेंगे मुंतशिर होना. मुंतशिर होने के माने मुख्तलिफ सिमतों में भागना. अब नाउ लेट्स सी द फोर्थ वन. जब हम घर पहुंचे तो मेहमान जा चुके थे. मेहमान पहले गए, हम बाद में पहुंचे. नंबर लास्ट, जब आप मुझे मिले तो मैं ये किताब खरीद चुका था. जब आप मुझे मिले तो ये किताब मैं खरीद चुका था, यानी कि मैंने पहले किताब खरीदी, आप बाद में मिले. I am sure you have understood what I taught you, and I am also sure, inshallah Taala, you will understand after doing it very well. Salim Sudhan is saying to all of you, Allah Hafiz, have a wonderful